let's continue. So first of all, I'll go through all the, we have finished that chapter networking wala. Usme a lot of topics we have covered up. I'll just brush up everything once. Uske baad we'll do some exercises based on that chapter. We'll try to solve various questions based on the chapter. Okay. So let's just see. कल हम कर रहे थे तो बीच में टाइम ओवर हो गया. So points to remember. These are all nutshell points which are there in the chapter. Initially, in the beginning of the chapter, we studied that communication system comprises of 4 components: sender, receiver, message, and channel. Sender is the one who is sending a message, receiver is the one who is receiving, and message is the data that we're sending, and channel is the way or medium through which the data travels. Okay. Now, a collection of interconnected nodes. Interconnected nodes, I told you, nodes are all kind of devices which are attached to a network. It can be a computer, it can be a printer, it can be a fax machine or telephone machine or a modem or a switch or a hub or a repeater. So all devices are called as nodes when they are connected in networks. So they communicate by means of some channel, right? Some channel means हो सकता है वायरलेस मीडियम हो सकता है वायर्ड मीडियम हो, किसी ना किसी चैनल के थ्रू दे all these nodes they communicate with each other, right? So networks में important क्या है? Networks, why we are using networks? Networks can be used as means of resource sharing, so we can share our resources. Resource sharing में आ जाता है कोई सॉफ्टवेयर शेयर करना या कोई हार्डवेयर शेयर करना. As we have discussed that printers अगर हम लगा दें नेटवर्क में, तो all the computers which are there in that network can access the single printer. तो वो single printer सारे share कर सकते हैं. So this is resource sharing. Similarly, if we install internet in a network to one main PC, so that internet connections can be used by other devices which are connected to network. So सारे networks के अंदर जितने भी nodes नहीं computers बोलेंगे, they can share the single network connection. And moreover, networks help us to communicate. We can send messages across network. Transmission medium refers to channel of transmission. किस channel के through transmission होगा उसको हम transmission medium बोलते हैं, through which data can be transmitted from one node to another. एक node से दूसरे node पे data transmit हो सके, right? और ट्रांसमिशन मीडियम दो तरह के हैं, गाइडेड और अनगाइडेड. गाइडेड जो है वो वायर्ड हो गए और अनगाइडेड हो गए आपके वायरलेस. ठीक है. गाइडेड में वी हैव फिजिकल कंडक्टर्स. गाइडेड मीडियम इटसेल्फ इज रेफर्ड टू एज फिजिकल कंडक्टर्स. जैसे वायर्स हो गई. अब वो वायर्स 3 तरह की है: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक. ट्विस्टेड पेयर जो है वो सबसे कॉमन है और नॉर्मल है. और ट्विस्टेड पेयर केबल्स में देर आर 4 पेयर्स ऑफ केबल्स. 4 पेयर होते हैं केबल्स के, मे बी मोर ऑल्सो. इन जो जनरल फॉर्म है, एक इथरनेट केबल आती है आपकी कैट 6 करके, कैट 5, कैट 6 नाम से आती हैं इथरनेट केबल्स. तो वो जो नेटवर्क केबल्स हैं वो ट्विस्टेड पेयर्स हैं. उसमें होता क्या है कि दो केबल्स का एक पेयर होता है और 4 पेयर्स होते हैं. इन ऑल वी हैव 8 वायर्स. ठीक है. So that means 8 bit of data can be sent at one time simultaneously. तो वो these wires are made up of copper. जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की केबल्स होती हैं, आपने देखा होगा 2 केबल्स होती हैं. ठीक है. एक इनपुट और एक वन साइड, एक सेकंड साइड, एक आने के लिए और एक जाने के लिए. सिमिलरली हेयर इन ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल्स ऑल्सो हमारे पास 4 पेयर्स होते हैं केबल्स के, 2 के, और they are used for transmitting data in the form of bits, right? जो दूसरी केबल है कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल is the one which has one main cable in the center and we have some mesh kind of thing on it.
आपने वो केबल टीवी वाली तार देखी होगी, वो केबल टीवी वाली जो केबल है उसमें बिल्कुल सेंटर में कॉपर वायर होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होती है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और ऊपर एक जाली सी होती है, ठीक है, एल्युमिनियम की। तो इसमें सिंगल केबल इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग, बट द सिंगल केबल इज थिकर एंड इट कैन कैरी मोर डेटा। प्लस कोएक्सियल केबल की एडवांटेज ये है कि कोएक्सियल केबल्स जो हैं वो जल्दी ब्रेक नहीं करती हैं, दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी फाइबर ऑप्टिक, हमने कल भी डिस्कस किया था। फाइबर ऑप्टिक वो केबल है जिसमें ग्लास फाइबर्स यूज होते हैं फॉर सेंडिंग डेटा, और ग्लास फाइबर्स पे जो डेटा जाता है वो लाइट वेव्स की फॉर्म में जाता है, ठीक है। बाकी केबल्स में सिग्नल्स जाते हैं, यहाँ पे लाइट में कन्वर्ट करके डेटा को सेंड किया जाता है, एंड वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज क्वाइट गुड, सो इट ट्रेवल्स, इट ट्रांसमिट्स द डेटा इन अ हायर स्पीड, ठीक है, और लॉन्गर डिस्टेंसेस कवर कर सकती हैं फाइबर ऑप्टिक्स, राइट। एंड these fiber optic cables they are quite strong when they are bunched together, although फाइबर है तो फाइबर थोड़ा ब्रेकेबल भी होता है, बट इसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कवरिंग करके रखा होता है, तो इसलिए ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड है ट्रांसमिशन का, ठीक है। तो इन तीनों में से ट्विस्टेड पेयर की जो ट्रांसमिट करने की जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है। कोएक्सियल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ट्विस्टेड एंड फाइबर ऑप्टिक्स इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट। ऐसे ही अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ट्विस्टेड केबल पेयर केबल्स आर वीकर इन कंपैरिजन विद अदर केबल्स, कोएक्सियल उससे थोड़ी स्ट्रॉन्ग है और फाइबर ऑप्टिक सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब आते हैं हम अनगाइडेड मीडियम से। अनगाइडेड मीडियम में वी यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर ट्रांसमिटिंग। इनमें क्या क्या आएगा? इनमें आएगा इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड सैटेलाइट लिंक्स। इंफ्रारेड की बेस्ट एग्जांपल है आपका टीवी वाला रिमोट। ना इफ यू सी, टीवी के रिमोट को आप एक रूम के बाहर जाके ऑन करेंगे तो टीवी ऑन नहीं होगा। The reason is that infrared waves they cannot penetrate the solid objects, वो वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, वो हमेशा कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आगे आता है तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब टीवी पे भी हम लोग क्या करें, अगर टीवी हमारे सामने है और हम ऑपोजिट डायरेक्शन में रिमोट को चलाएं वो तब भी चल जाता है। वो कैसे? बिकॉज वो जो रेडियो वेव है वो वॉल से रिफ्लेक्ट होकर टीवी की तरफ पहुंच जाती है, तो इसमें रिफ्लेक्शन होती है। ये एक इसका डिसएडवांटेज है दैट इट कैन नॉट पेनिट्रेट दी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करके नहीं जा सकती, ठीक है। बाकी इनकी रेंज बहुत कम होती है इंफ्रारेड वेव्स की, सो दे आर जनरली यूज विद इन वन रूम, विद इन वन कैबिन ओनली, रूम से बाहर हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते, फाइन। और ये यूनी डायरेक्शनल होती है, इंफ्रारेड कैन ट्रेवल इन वन डायरेक्शन ओनली, फाइन। Next category is radio waves. Radio waves they are meant for broadcasting. Broadcasting का मतलब कि ये हर तरफ फैलती हैं, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, हर तरफ जा सकती हैं। एंड मोर ओवर रेडियो वेव्स जो हैं वो आपके सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को भी पेनिट्रेट कर सकती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एफएम रेडियो जो हम सुनते हैं। तो एफएम रेडियो वर्क्स ऑन रेडियो वेव्स, जिसमें आप कहीं पे भी हों, किसी भी लोकेशन में, रूम के अंदर बैठे हों या कार में हो, तो वहाँ पे भी रेडियो एक्सेस आपको मिल जाएगा, बिकॉज रेडियो वेव्स किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। और दूसरी बात, ये लॉन्गर डिस्टेंसेस पे जा सकती है, तो पूरा सिटी कवर हो जाता है, या सिटी या मल्टीपल सिटीज भी कवर हो जाते हैं, ओके। थर्ड कैटेगरी इज माइक्रोवेव। Now microwave is again unidirectional. It only travels in one direction. And again microwave just like infrared, ये भी solid objects को penetrate नहीं कर सकती, right? So इसका एडवांटेज ये है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग होती है। दैट मीन्स अगर हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री को डेटा भेजना है तो माइक्रोवेव कैन बी यूज फॉर दैट, ठीक है। हम माइक्रोवेव्स को कैसे यूज करते हैं? बिकॉज देखो प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर हम कंट्री टू कंट्री ट्रांसमिट करते हैं तो बीच में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आ गया तो माइक्रोवेव जा नहीं पाती है,
तो माइक्रोवेव टावर्स आर इंस्टॉल्ड ऑन दी ओशंस। ओशंस के ऊपर से हम लोग माइक्रोवेव्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, बिकॉज ओशंस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो दे आर जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा अक्रॉस कंट्रीज थ्रू ओशंस, right? Because their strength is very high, they can carry data for very long distance. Okay, जो हमारा लास्ट कैटेगरी है सैटेलाइट। नाउ सैटेलाइट वर्क्स ऑन मिक्सअप ऑफ ऑल दीज। सैटेलाइट कनेक्शन इज नॉट वन काइंड ऑफ कनेक्शन। उसमें क्या होता है कि ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन रिसोर्स सेंटर फ्रॉम द अर्थ टू द सैटेलाइट, then satellite send it to some other destination on the earth. तो ये ट्रांसमिशन में माइक्रोवेव भी यूज होती है, बिकॉज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और लोकल डिस्टेंस पे, लोकल एरिया पे, जैसे अर्थ के ऊपर, इफ यू टेक एन एग्जांपल, जैसे हम लोग अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो डेटा फ्रॉम माई पीसी मस्ट बी ट्रेवलिंग टू यू पीपल थ्रू सैटेलाइट ओनली। द रीजन इज दैट कि हमारे मेरे पीसी से डेटा कैसे जाएगा, डेटा पैकेट्स विल बी डिवाइडेड एंड दैट डेटा पैकेट विल गो टू दी लोकल सर्वर फ्रॉम माई मशीन। ठीक है, तो जैसे मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ तो वायरलेस मीडियम से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। फाइन, सो इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होके लोकल सर्वर तक पहुंचेगा। तो सर्वर से जब वो सैटेलाइट के पास जाएगा तो वो माइक्रोवेव यूज कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही तो ये मिक्स एंड मैच होता है, रेडियो वेव्स माइक्रोवेव्स दोनों यूज करता है सैटेलाइट लिंक। ओके, so with this we can transmit data at much higher distance as compared to individual microwave or radio waves. तो सैटेलाइट इसलिए बेटर है सबसे, बिकॉज वो रेडियो भी यूज कर लेगा, माइक्रो भी यूज कर लेगा और ट्रांसमिट कर सकता है डेटा को किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पे। राइट, नेक्स्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन ए नेटवर्क। नोड्स का अरेंजमेंट, जितने नोड्स लगाए हमने एक नेटवर्क के अंदर, उसके अरेंजमेंट को बोलते हैं टोपोलॉजी। ठीक है, we have 4 types of topologies. One is bus, one is ring, one is star, and then we have mesh. Right, 5, sorry, 3 topologies also there. बस टोपोलॉजी वो है जिसमें एक लॉन्ग केबल है सेंटर में, उस केबल को हम बैकबोन केबल बोलते हैं या सिंपली बैकबोन भी बोलते हैं, एंड ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर केबल। वो बैकबोन केबल के साथ सारे नोड्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं। राइट, और एक कनेक्टर आता है जिससे हम उस वायर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको टैप बोलते हैं, जिस कनेक्टर के थ्रू वो लॉन्ग केबल के साथ डिवाइसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, अब द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बस टोपोलॉजी का फायदा क्या है और नुकसान क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। बस टोपोलॉजी में फायदा सबसे बड़ा ये है कि वी कैन एक्सटेंड द नेटवर्क इजीली। राइट, हम नेटवर्क को और जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। एक मेन केबल है बैकबोन केबल, उसके साथ वी कैन connect further backbone cables and we can extend our backbone cable to any limit. Fine, so this is very good advantage. और secondly इसमें नंबर ऑफ केबल्स कम लगती हैं, बिकॉज एक ही कॉमन केबल होगी। we are not connecting all the devices, all the nodes with each other directly. We are using a common cable, so that's why it is more cost effective also. इसमें खर्चा कम आएगा। ठीक है, so this is the advantage। और disadvantage क्या है? Disadvantage ये है कि the data has to travel every node when it is transmitted. If let's say PC number 1 is transmitting data to the PC number 10, so it has to go to all the nodes. It will first go to PC number 2, then 3, 4, 5, 6, 7, 8, then it reaches the 10. और वो एड्रेस जब मैच होगा तब डेटा डिलीवर होगा। तो इसमें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ जाती है। राइट, सो whenever data is traveled, so some kind of insecurity is there because that data is accessed by all the computers. तो एक कंप्यूटर पे भी कोई हैकर बैठा है तो वो उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है,
तो ये इसका डिसएडवांटेज है। सेकेंड कैटेगरी इज रिंग टोपोलॉजी। रिंग में क्या है, वही कॉमन केबल है बट केबल जो है वो आपस में रिंग फॉर्म में कनेक्ट होती है। ठीक है, इसमें एडवांटेज जो है, एक तो एडवांटेज वही है सेम बस वाला कि इसको भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, रिंग सर्कल, रिंग वाला सर्कल बढ़ा सकते हैं। सेकेंडली इसमें एक और एडवांटेज है कि डेटा कैन ट्रेवल इन टू डायरेक्शंस, वन ऑन द लेफ्ट साइड एंड वन ऑन द राइट साइड। ओके, तो बाई टू डायरेक्शंस में डेटा जा सकता है। बाकी इसमें डिसएडवांटेज वही है कि कॉमन केबल है और अगर केबल खराब हो गई तो नेटवर्क सारा फेल हो गया। दिस इज द डिसएडवांटेज इन बस टोपोलॉजी ऑल्सो, कि अगर वो कॉमन केबल जो है वो खराब हो गया तो डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। एंड सेकेंडली अगेन द सेम प्रॉब्लम दैट डेटा इज अगेन इनसिक्योर बिकॉज इट हैज टू ट्रेवल टू एवरी नोड। फाइन। Third category is the star topology, and the star topology is generally used in smaller networks. जैसे हम लोग labs वगैरह में यूज करते हैं तो we use star topology. इसमें फायदा सबसे बड़ा ये है कि because all the nodes they are connected to each other directly through a central node, right? We have one hub in the center or switch in the center, और सारे के सारे जितने भी नोड्स हैं, जितने भी कंप्यूटर या डिवाइसेस हैं, वो सारे उस हब से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। तो इसमें व्हेनेवर ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो वो डिवाइस डेटा भेजेगा हब को या स्विच को, स्विच आगे ट्रांसमिट कर देगा जो डेस्टिनेशन पीसी है, राइट। ये इसका फायदा है कि केबल लेंथ जो है, केबल लेंथ तो इसकी ज़्यादा लगेगी, ये इसकी डिसएडवांटेज है बिकॉज सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करना पड़ेगा, केबल लेंथ ज़्यादा लगेगी। बट द थिंग इज दैट डिस्टेंस इज शॉर्टर, द डेटा विल नॉट गो टू ऑल द डिवाइसेस, right? We have only two levels. First of all, the data will go to the server or the hub or the switch in the center, then center से वो destination computer पे जाएगा। तो distance कम travel करना पड़ता है, इसलिए हम लोग छोटे local area networks में star topology prefer करते हैं, right? और डिसएडवांटेज आई टोल्ड यू, स्टार टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज है कि केबल लेंथ काफी लगेगी बिकॉज हर नोड को हमने कनेक्ट करना है। Fourth is mesh topology, in which all the nodes are connected with each other in the network. इसमें कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता, कोई सेंट्रलाइज हब नहीं होती। मैश टोपोलॉजी में जितने नोड्स हैं सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ केबल्स। नाउ लेट्स से देयर आर 5 कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, तो 5 के 5 कंप्यूटर्स बाकी सारे 4 कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड होंगे, हर कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ केबल। तो इसमें तो केबल लेंथ और बढ़ जाएगी, ठीक है, तो दिस इज मोर कॉस्टली, ज़्यादा केबल्स हो जाएंगी और मोर ओवर नेटवर्क विल बी कॉम्प्लेक्स, इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज सच नेटवर्क। बट फायदा क्या होगा कि डायरेक्ट लिंक्स हैं, तो इसमें तो बीच में हब या स्विच भी नहीं है, तो डायरेक्टली डेटा कैन बी सेंट, इट इज मोर फास्टर देन द स्टार टोपोलॉजी। ओके, बट द थिंग इज इफ योर नेटवर्क इज ग्रोइंग, नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो मेश टोपोलॉजी में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी और ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आएंगी। ओके, द लास्ट वन इज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में combination of star and bus, we have bus topology in the center, और बस से जो जहाँ पे हम नोड्स को कनेक्ट करते हैं वहाँ पे हमने हब या स्विच को कनेक्ट कर देना है और उस हब से फर्दर स्टार फॉर्म के डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक ए ब्रांचेस ऑफ द ट्री, एक मेन बस सेंटर में हो गई, एक केबल सेंटर में हो गई बैकबोन, उससे काफ़ी सारे हब्स यूज कनेक्ट कर दिए और हर हब के साथ फर्दर डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। तो दिस फॉर्म्स द ट्री टोपोलॉजी। नाउ दिस इज द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग नेटवर्क स्ट्रक्चर, राइट। तो इसमें दोनों फीचर्स आ जाएंगे, एक्सटेंशन भी हो जाएगा नेटवर्क का और डायरेक्टली लिंकिंग होगी, तो कम टाइम लगेगा डेटा ट्रांसमिट करने का, राइट। और अगर हमने नेटवर्क, हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो वी ऑलवेज प्रेफर ट्री टोपोलॉजी, ठीक है, क्योंकि स्टार्स को आपस में
कॉमन बस से जोड़ देंगे तो वो ट्री टोपोलॉजी बन जाएगा, राइट। The LAN, MAN, WAN, the main thing is that local area network covers radius up to 1 kilometer distance. Now, a local area network can be within one building or a campus. MAN is metropolitan area networks, 50 kilometers तक का इसका range है, और it covers entire city, right? और मैन जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आपका टीवी केबल है। द केबल टीवी दैट वी आर एक्सेसिंग ऑन होम्स, वो सिटी के अंदर एक नेटवर्क होता है, वो मैन कैटेगरी का एग्जांपल है। वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल इंटरनेट है, जहाँ पे 1000 किलोमीटर्स इज द स्पैन, और इट इवन मोर देन दैट 1000। तो ये जैसे इंटरनेट तो पूरा वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। तो इंटरनेट इज वन काइंड ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क वेयर द कंटिनेंट और कंट्रीज दे कैन बी लिंक्ड विद ईच अदर। इसके बाद हम आते हैं डिवाइसेस पे। रिपीटर इज ए डिवाइस टू रीस्टोर द सिग्नल्स। रिपीटर वो डिवाइस है जो सिग्नल्स को रीस्टोर करता है so that it can travel longer distance. Hub is a device to connect a single component to it, right? इसके अंदर इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं जिससे हम बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट डिसएडवांटेज ऑफ हब इज दैट इट ब्रॉडकास्ट द डेटा टू ऑल द डिवाइसेस। तो ये वही प्रॉब्लम है जैसे बस में था कि सारी जगह डेटा जाएगा, इसमें भी हब के थ्रू जब डेटा ट्रांसमिट होगा तो इट विल ट्रेवल टू ऑल द डिवाइसेस, ऑल द नोड्स, फाइन। सो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। ब्रिजेस is a multi-port device used for connecting two or more local area networks. दो या दो से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है तो हम बीच में ब्रिज लगाते हैं, ठीक है। तो ब्रिज जो है वो मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है, राइट। सो स्विच इज इंटेलिजेंट डिवाइस देन हब। रीजन इज हब जो है वो भी नोड्स को कनेक्ट करता है, स्विच भी नोड्स को कनेक्ट करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हब में डेटा ट्रांसमिट होता है हर नोड को, स्विच सेंड्स डेटा टू द इंटेंडेड नोड ओनली, द डेस्टिनेशन नोड ओनली। अगर मैं यहाँ से कोई या मेरे कंप्यूटर से कोई डेटा जाएगा, आई वांट टू सेंड द डेटा टू लेट्स से सिस्टम नंबर एक्स, सो स्विच क्या करेगा, सिर्फ सिस्टम नंबर एक्स को ट्रांसमिट करेगा। हब क्या करती है, जितने भी डिवाइसेज हैं सबको ट्रांसमिट कर देती है, जिसके साथ आईपी एड्रेस मैच हो गया वहां डेटा ट्रेवल डिलीवर हो जाता है, नहीं तो नहीं होता, ठीक है। तो वो थोड़ा अनसिक्योर है हब वाला जो वर्किंग है। स्विच इज अ बेटर एंड सिक्योर मीडियम। रूटर्स आर अगेन द डिवाइसेस व्हिच आर इंस्टॉल्ड विद इन नेटवर्क्स, और इसका काम है बेस्ट पॉसिबल रूट निकालना, राइट। और रूटर मेंटेन्स रूटिंग टेबल जिसमें वो जितना भी बेस्ट पॉसिबल रूट्स उसने निकाले हैं उनको उनका एक डेटाबेस मेंटेन करके रखता है सो दैट इन फ्यूचर इट कैन बी यूज्ड, राइट। गेटवे और ब्रिज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटवे और ब्रिज दोनों मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं। डिफरेंस ये है कि जो ब्रिज है वो सिमिलर काइंड ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, और गेटवे कनेक्ट्स dissimilar kind of network. Dissimilar means where the networks, they have different topologies, they have different structure, they are using different kind of protocols. In some network there is a wireless form, in some network there is a wired form of network. So जैसे अलग अलग नेटवर्क्स को जब कनेक्ट करना है तब हम गेटवे लगाते हैं। अगर सिमिलर नेटवर्क्स हैं जैसे लोकल एरिया नेटवर्क्स ही हैं तो हम ब्रिज लगाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस काफी बार पूछा जाता है, राइट। देन इज a wide network of networks is called as internet. Internet is network of networks, and we use internet to exchange information and communicate with remote nodes. Remote nodes are the computers or devices which are placed at remote areas, far away areas, right.
ये प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल आर द रूल्स एंड कन्वेंशंस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर जो दो डिवाइसेस है उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए सर्टेन रूल्स एंड कन्वेंशंस आर सेट। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, ये रूल्स जो है वो कम्युनिकेशन को चैनलाइज करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। ईमेल्स क्या है? ईमेल्स आर द टेक्स्ट मैसेजेस सपोर्टेड बाय मल्टीमीडिया अटैचमेंट्स। ईमेल्स में टेक्स्ट भी होता है, मल्टीमीडिया भी अटैच कर सकते हो, एंड वी कैन सेंड दीज टेक्स्ट मैसेजेस टू वन और मेनी रेसिपिएंट्स एट वन टाइम। एक या एक से ज्यादा लोगों को भेजी जा सकती है, राइट। और ये ईमेल्स जो हैं वो ईमेल एप्लीकेशंस के थ्रू एक्सेस होती हैं, एंड वी हैव डन दैट ईमेल एप्लीकेशंस कम्स इन टू कैटेगरीज। one is which is available online and one is which is available offline. ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं जिससे डेटा ट्रांसमिट हो सके, और ऑनलाइन जो है जैसे जीमेल याहू मेल वगैरह है, these applications are available on net and you can log in the net with your ID and password and then you can send the emails. ऑफलाइन में जो बेस्ट एग्जांपल है वो आउटलुक एक्सप्रेस है। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, आप उसको इंस्टॉल करो पीसी के ऊपर और आप उसमें मेल वगैरह कंपाइल कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। और मेल तभी सेंड होगी जब आपका आउटलुक सॉफ्टवेयर नेट से कनेक्ट होगा, अदरवाइज द मेल विल रिजाइड इन द आउट बॉक्स, और वो वहीं पे रहेगी जब तक नेट कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इट्स अ बेटर वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स। FTP is file transmission protocol and it is used for transferring files. HTTP जो था, HTTP हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है। हाइपर टेक्स्ट मतलब वेब पेजेस का डेटा, वेब पेजेस के ऊपर जो टेक्स्ट है वो उसको ट्रांसमिट करता है। FTP जब हम फाइल ट्रांसफर करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो दिस प्रोटोकॉल हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग फाइल्स। ठीक है, टेलनेट जो है वो रिमोट लॉगिन के लिए यूज होता है। टेलनेट इज टर्मिनल नेटवर्क। इससे हम अपने पीसी पे बैठे बैठे दूसरे किसी पीसी को लॉगिन करके उसके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह अवेलेबल होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इज repository of information. Repository means it's a place where all sort of information is stored which is available on internet. जितनी भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है उसका कलेक्शन जो है वेब है। ठीक है, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सर्वर्स में स्टोर होती हैं, एंड ऑल दीज repositories they are connected to each other so that if anybody want to search, it's easy for them to search. Web pages may contain text, images, audio, video, information. वेब पेजेस में कई तरह का डेटा आ सकता है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या इंफॉर्मेशन या लिंक्स टू डिफरेंट पेजेस। ये हमने प्रोटोकॉल्स किए थे टीसीपी और आईपी। टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स में हमारे मैसेज को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करता है और उसके साथ में आईपी एड्रेसेस को अटैच करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो आईपी एड्रेसेस को रीड करके डेटा ट्रांसमिट करता है। दिस वी हैव डन इन दैट टीसीपी आईपी मॉडल के 4 लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स जो हैं ट्रांसमिट करेंगे। So layers I'll discuss tomorrow, right? So I think we'll wind up here because the lesson will end up in 2 minutes. तो यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे, फिर मैं थोड़ी एक्सरसाइजेस आपको कराऊंगा। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ये हम कल सॉल्व करेंगे। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी दैट मे कैन कम इन एग्जाम। अच्छा, काफ़ी लोग आ गए, मैं ज़रा अटेंडेंस एक बार दोबारा ले लेता हूँ। हाँ जी बच्चों, एनी डाउट टू एनीबॉडी? हाँ जी।